Assalamu alaikum to everyone and a very good evening. Hope you all are doing well. My name is Farisha Shahzad. I am from the Department of Business Administration last year, or you can say BBA 4. We arranged this webinar with the help of our course instructor, Miss Maria Sayed. Me and my group members are Nada Zishan, Samar Salim, Amna Shamim, Amna Imran, and Farzeen Aslam. So, keeping in mind the recent drastic events, we are working towards making sure that people in our country have the knowledge, awareness, and ability to defend themselves. For this purpose, we organized this webinar for Jinnah University for Women. It will cover the three main domains, which are active defense, passive defense, and reactive defense. This webinar will be conducted by our guest speaker, Shirbaz Khan, who has the experience of 25 years in martial arts and much more. Now, a very warm welcome to our guest speaker, Shirbaz Khan. Thank you, Anisha. So nice of you. इतना मैं सर क्लैपिंग भी होनी चाहिए, हुटिंग्स भी होनी चाहिए. समझ लो बहुत खत्म हो कर गई देते है. हैं. I think सारे majority students ही हैं तो इतनी डिटेल में जाने की इतनी जरूरत नहीं है. So we will start with a basic introduction. Uh, just to give you an idea कि यार I always prefer कि ऐसी जब हम लोग सब डिफेंस की बात कर रहे होते हैं या एटलीस्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं, it is always recommended कि you should have physical classes. But I think यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि when you need to talk about physical या motor skills वहाँ पे virtual learning नहीं होती. It is always about awareness. मैं थोड़ी सी logic बताऊंगा अभी थोड़ी theory बताऊंगा and I will then show you some basic techniques which people can use in certain situations. But those techniques are more for awareness and giving you some ideas. Unless and until you are physically training and experiencing these methods, I would advise you not to basically do it. Biomechanical movements are always to be experienced. They are not to be seen and observed. तो मैं शुरू करता हूँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो कंफ्यूजन और फील फ्री टू आस्क मी आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स the introduction would be okay, what is the difference between what self-defense truly is and what do people actually believe. आप लोग movies देखते हो, आप लोग कभी कभी YouTube को browse करते हो, YouTube में review करते हो. So there are a lot of things you see which you assume are self-defense, but in reality that is more about uh, it's combat, it's street fighting, it's more of projecting your power or basically projecting what you sorry projecting some kind of power. That is the main difference between self-defense and street fighting. Street fights may it's more about projecting something rather than basically defending yourself. So Sun Tzu was one of the greatest military philosophers. उसने कहा था the greatest battle is a battle not fought. The greatest victory is a battle not fought. So self-defense is basically about this. Okay, you are able to survive if you are not actually confronting someone or you are not putting yourself in a situation जहाँ आपको खतरा हो. Uh, आप अगर अभी नेट पे जाओ self defense के बारे में YouTube पे सर्च मारो you will get 100 techniques. कोई चाकू लेके आ रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है. बट आपको मेजोरिटी लोग ये नहीं बोलेंगे the best thing you need to do is run away. अगर कोई ऐसी बात होती है आपको खतरा लगता है, नंबर 1 प्रिकॉशंस अवॉइड करो. सेकेंडली खुदा ना खास्ता अगर किसी सिचुएशन में आप भी जाते हो, प्रिवेंशन करो, डू नॉट एंगेज, क्योंकि जहां एंगेजमेंट आएगी यू विल गेट हर्ट. एंड दैट इज द बेसिक premise of self defense. It is not about the fancy moves या flashy gadgets people use. It is about surviving. अभी मैं आपको एक दो मेथड्स दिखाऊंगा, उसमें यू विल सी यार कि चोटें लगती हैं जब आपको कोई हरास करने आएगा या रेड करने आएगा. कोई प्यार से नहीं आएगा कि बाजी 9 से 12 चलेंगी आप. They will be very aggressive, they will hit you, they will want to hurt you. So they will not be very nice. इस तरह आपने मूवीज में टेक्निक्स में देखा होगा यार कि बंदा आ रहे हैं, लड़की को पकड़ रहे हैं, अब लड़की ने हाथ यूं किया, उसके हाथ छूट गए और लड़की ने मुक्का मारा, लड़का गिर गया. An average guy is bigger than a girl. और अगर एक सेम हाइट या सेम वेट के लड़का लड़की हो, लड़के की स्ट्रेंथ जनरली ज्यादा ही होती है. डू नॉट अज्यूम कि हल्की फुल्की हिट से लड़का गिरेगा. ही वुड बी वेरी एग्रेसिव. अगर उसके हार्मोन्स रश कर रहे हैं तो वैसे उसका एंडोरिन पंप कर रहा होगा, उसके एक दो मुक्कों से आपको कुछ नहीं होने वाला. तो सेल्फ डिफेंस you need to understand is not something fancy. It is brutal, it is real.
अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, you have to use some defense techniques, या you are in a situation where you defend yourself, there is a possibility you will get hurt. So the first step you need to understand is prevention and precautions. uh, फोकसिंग ऑन दिस, यार बहुत लड़कियों को मैंने अक्सर ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि यार वी लिव इन अ कंट्री, हम पाकिस्तान की बात करें, ये ऐसी जगह है, हम सेफ नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, मैं रात को बाहर जाऊँ तो मुझे खतरा होता है, फलाना होता है, फलाना होता है. And frankly speaking, that is a very it's a very stupid thing. I don't mean to be offensive, I don't literally mean to offend anyone here, but ये जुमला करना is literally stupid. क्यों? It is not अबाउट योर जेंडर की लड़की सेफ फील नहीं करेगी या लड़कियां सेफ नहीं करेंगी, सेफ फील नहीं करती. बिकॉज अगर एक लड़की पर ये वाकया हुआ था डिफेंस में ही फेज 8 में कि रात को 2 बजे वो कोई मूवी देख के आ रहे थे फ्रॉम द प्लेस, उनके पीछे को पराडो लग गई थी और इसके बड़ा इश्यू हुआ था, उन्होंने फेसबुक पर बड़ी बातें की थी. तो देखो, आई एम अ गाय, आई नो हाउ टू फाइट, ओके, मुझे बंदूकें छीननी आती हैं, नाइफ से लड़ना आता है, ये बेसिक्स ऑफ डिफेंस की चीजें. दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी, बट आई वुड अवॉइड दीज थिंग्स. मतलब मैं रात को अवॉइड करता हूँ निकलना, आपको पता है. why would I want to be in a situation जहाँ मुझे खतरा हो? Yes, girls have a higher potential या potency या I would say probability of being harassed या rape की potential होता है, बट लड़कों में किडनैपिंग का बड़ा खतरा होता है. यहाँ पे there have been a lot of cases जहाँ रैंसम के चक्करों में लड़कों को उठाया जाता है और 90% वो मार के चले आते हैं. Not everybody can pay a lot of money. So even I would like to avoid this thing. मैं रात को unless until it is very important, I would not go. Do not expose yourself in a situation जहां आपको खतरा हो सकता है. We live in a country, हमें पता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, तो डू नॉट अज्यूम कि मैं रात को बाहर जाऊंगी और फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता ऐसा सीन होगा तो आई विल गेट हेल्प या समथिंग लाइक दैट. अनलेस एंड जरूरी है, वी नीड टू अवॉइड दैट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, आई मीन एवरीवन. कोई ऐसी जगह जहाँ आपको पता है खतरा है, अवॉइड करो. ऐसे टाइम जहां आप निकलो, आपको पता है यार पाकिस्तान की बात, मोबाइल स्नैचिंग इज वेरी कॉमन, अवॉइड दैट सिंपली. फर्स्ट थिंग इज अवॉइड. सेकेंडली, थोड़ा सा एक्टिव रहो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स इंक्लूडिंग सम गाइस, जब वो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनका मुंह बिल्कुल नीचे होता है, या दे आर इन अ जोन, एक फेज में जा रहे होते हैं. दैट okay, that's fine. आप if you're in a zone, that is completely fine. But अगर आपको किसी नई जगह जाना है, you're outside या ऐसी जगह पे हो या social elements ऐसे हैं where you might be attacked or you might be harassed, anything like that, be a little more attentive. Just give me a second. ये मैंने mute करना है बच्चों को. Guys, please, just a request, सारे अपने आप को mute रखें. होपफुली मेरी आवाज आ रही हो, अगर आवाज नहीं आई तो बता दिएगा. तो कीप योर आईज ओपन. इफ यू आर एंटरिंग अ कार, गाड़ी से उतर रहे हो, घर में जा रहे हो, गाड़ी अगर रुकती है, आई डू दिस वेरी ऑफन कि अगर मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, मैं पहले राइट लेफ्ट देखूंगा, मेरे आसपास की बाइक तो नहीं आ रही, कोई लड़के तो नहीं है, कोई अनयूजुअल लोग तो नहीं है. अगर ऐसा कभी होता है, आई डू नॉट स्टॉप माय कार, आई वुड रादर गो थोड़ा सा आगे एंड आई विल कॉल पुलिस. या हमारे यहाँ पे ब्रिंक्स की सिक्योरिटी लगी हुई है, या मैं घर फोन करके बोलता हूँ अलार्म बजा दो, तो अलार्म बज जाएगा, तो वो लोग घबरा जाते हैं जरा. आई रादर नॉट टेक रिस्क. हो सकता है वो कोई आम मजदूर हो, कोई ऐसे बंदे हो, बट मुझे तो नहीं पता ना. द मोमेंट दे टेक आउट अ गन, आई कैन डू नथिंग. अगर मैं करूंगा, देयर इज अ रिस्क फैक्टर. देयर आर टेक्निक्स वेयर वी कैन बेसिकली स्नैच गन्स, बट वो उस वक्त हम करेंगे जब हमारी जिंदगी को खतरा है. अगर मुझसे कोई मोबाइल छीनने के लिए आएगा, आई विल नेवर फाइट, इवन दो आई नो हाउ टू डू दिस थिंग्स. There is always the element of human error. हाथ स्लिप हो गया, टारगेट हालत हो गया, कुछ हो गया. अभी आई थिंक कुछ महीने पहले हमारे एक एसएसजी कमांडो का बंदा बेचारा, आई थिंक लाहौर शहर में शहीद दिए गए थे. स्नैचिंग हो रही थी, he resisted and he was shot. SSGs are one of the best trained people in the world. So yeah, so even they can make mistakes. So you only use these techniques जब आपकी फैमिली को, आपको, आपकी जिंदगी को, आपकी सेफ्टी को खतरा होता है. So precautions is the first thing you will do. एहतियात करो. घर में जा रहे हो, घर का दरवाजा खोल रहे हो, लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर ओपनिंग. जब भी लोग आते हैं, दे जंप फ्रॉम अ बाइक, यू कैन शाउट, यू कैन क्रिएट अ सीन, यू कैन किक देम, यू कैन डू समथिंग प्रोएक्टिवली.
जब बंदूक निकली, दैट इज अ डेंजरस पार्ट। बंदूक निकलते हुए आपने कुछ कर लिया, दैट माइट बी सेफर। तो दो चीजें हमने अभी डिस्कस किए। नंबर 1, be careful, avoid situations, avoid places where you can put yourself in risk. Secondly, be proactive, be careful. Whenever you are in a place where you have to be, keep your eyes open. अगर आपको लगता है कहीं खतरा है, avoid that और proactively react करो। शोर मचाना शुरू कर दो, चीखना शुरू कर दो, या हट जाओ वहां से, निकल जाओ, go to people you know. तो अच्छा, एक चीज मैं शायद मेंशन करना भूल गया, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स। क्योंकि हरासमेंट की, हम ये अटेम्प्ट रेप की बात करें, दो किस्म के लोग होते हैं। एक अटेम्प्ट रेप जो होता है, इट इज फ्रॉम पीपल यू नो। एक होता है पीपल यू डोंट नो, इट इज एन क्या कहते हैं, अनकॉमन अटेम्प्ट, अनकॉमन अटैक होता है। तो हमारा जो सेशन है, इट इज अबाउट अटेम्प्ट्स या हरासमेंट या रेप वेयर वी डोंट नो द अटैकर। काफी जगहों पे जानने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, अंकल होते हैं। तो उसको, उस सिनेरियो के सिचुएशन को भी कंसीडर नहीं करें, फॉर सिंपलिसिटी एंड कीपिंग द टाइम इन माइंड। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू पीपल, यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ खुदा ना खास्ता आपने सब चीजें कर ली, आपने प्रिकॉशंस भी लिए, नहीं जा रहे, अनफॉर्चुनेटली आप को किसी टाइम किसी वजह जाना पड़ा, आपने पूरे एहतियात भी किए, यू हैव केप्ट योर आईज ओपन, यू हैव बीन वेरी केयरफुल, बट स्टिल you got in a situation jahan somebody is trying to do something, somebody is trying to harass you, somebody is trying to pick you up, or somebody is trying to attack you or anything like that. That is what we call a potential conflict or a potential engagement. Jahan engagement aa rahi hoti hai, you need to understand there is a scientific approach to this. There are levels of engagement. इसको हम कहते हैं रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल, या रेड जोन, ग्रीन जोन एंड येलो जोन। Red zone is when you are very close to your opponent. आप बैठे हुए हो, somebody can touch you. आप खड़े हुए हो, somebody can literally touch you or grab you. That is the red zone. The yellow zone is when you are 2-3 feet away from your opponent. आपको पता है वो सामने, he or she is about to attack you, but they are not in close proximity. They might need to move. एक कदम लेना पड़ेगा. Green zone is when you are 8 to 10 feet away. आपको पता है अटैक होने वाला है, and you have some distance, so you have an opportunity to run, create a scene या कुछ उठा के मारने का। तो इन तीनों situations में, इन तीनों distances में, you have time and there are different techniques. रेड जोन में जो मसला है, रेड जोन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि you will get hurt. ये तो आप ध्यान से निकाल लो कि रेड जोन के अंदर आपको चोट नहीं लगेगी। क्राफ मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट्स है, सिस्टमा एक रशियन मार्शल आर्ट्स है, which are considered ideal for self defense. I would say Krav Maga ज़्यादा है क्योंकि systema is more lethal. Krav Maga में the first thing they teach you when you talk about armed conflict या armed engagement is कि if you are defending yourself and your opponent has a knife, आपको यहाँ पे कर लगेगा, यहाँ पे कर लगेगा, that is fine because you are saving your life. आप डांस नहीं कर रहे हो, आप खेल नहीं रहे हो, आपने अपनी जान बचानी है। तो अगर हाथ वाथ पे कट पड़ते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। आपने अपनी वेन्स बचानी है, रगों को ना लगे, आर्टरीज को ना लगे, दैट वे यू विल गेट हर्ट। आपको चोट लगेगी, आप मर सकते हो, यू कैन ब्लीड आउट। सो दिस इज टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि सेल्फ डिफेंस इज नॉट सम फैंटेसी जिसमें कोई आपको अटैक करेगा, यू विल बी इन अ वेरी गुड जोन, आप आइडियलिस्टिकली से बच जाओगे, उसको हटाओगे, 2-3 मुक्के मारोगे, वो गिर जाएंगे एंड यू विल गो बैक होम, बड़े खुशी से सबको बताओगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है, if somebody tries to rape you or somebody tries to kidnap you, they will either खामोशी से उठाएंगे तो गनशन होंगी, जो कि इट्स यूजुअली नॉट वेरी कॉमन अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट या रेप की बात करते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, दे विल फिजिकली ट्राई टू बी वेरी एग्रेसिव, या तो आपको जबरदस्ती पकड़ेंगे या जोर से नीचे गिराएंगे, या दे विल very forwardly they will hit you, मुक्के शुक्के मारेंगे, बाल पकड़ेंगे, बालों से खींचेंगे। And the biggest problem is these things happen usually when you are not aware. आपको पता भी नहीं होगा। फिजिकली हमारी जो एक्सरसाइजेस होती है हम लोग करते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ मैं ये करने वाला हूँ, and I actually do this, पर आपको अपने हाथ से मुझे रोकना होता है, and 100% of the participants are not able to stop that, even though they are aware कि मैं ये करने वाला हूँ, मतलब I'm going to touch them, और they are not able to react. This is the reality कि आपको पता भी होगा, you don't have the time, you don't have the reflexes to basically do something. अब मैं आपको 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। मेरे कोलीग भी आए हैं पीछे, उनको मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी।
तीनों जोन्स की बात करूंगा, बट बिफोर दैट आई विल नीड टू क्लियर 2 पॉइंट्स। जब हम तीनों जोन, रेड जोन हो, येलो जोन हो, ग्रीन जोन हो, इन तीनों जोन में एंगेजमेंट्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को भी 3 कैटेगरीज में ब्रेक किया जाता है। अच्छा, ये जोन्स हैं, your techniques, and these are my own development because I have worked with a lot of people. I have done a number of different martial arts, and according to my observations and my interactions, this is how I've classified these things. ये आपको normally categories और classifications कहीं नहीं मिलेंगे, आप Google करो, आपको ये categories नहीं मिलती। तो depending on 3 zones, you have 3 types of techniques. एक होती है active, एक होती है passive, एक होती है reactive. एक्टिव क्या होती है? बंदा कुछ करने लगे उससे पहले ही आपने उसको मारा। पैसिव क्या होती है? बंदा कर रहा है, आपने उसको मार दिया बिफोर ही एक्चुअली गोस थ्रू द अटैक। रिएक्टिव क्या होती है? यू आर अंडर एन अटैक, किसी ने आपको पकड़ लिया, आपके गिरबान पकड़ा है, बाल पकड़े में, एंड देन यू आर रिएक्टिंग टू द अटैक। तो रिएक्टिव अटैक्स यूजुअली रेड जोन में होते हैं, बट अगेन देयर इज नो रूल, ये आगे पीछे होते रहते हैं। रिएक्टिव अटैक्स आर डेंजरस, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। For that you need to build a lot of muscle memory. Muscle memory में हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे हाथ पैर खुद चलने शुरू हो जाते हैं, because once you engage, 1 सेकंड में इतनी कुछ हो सकता है, आपकी सोच है। जहां एंगेजमेंट हुई, there is hell, प्रॉब्लम्स होंगी, खतरा है और बड़े मसले हो जाते हैं। तो we need muscle memory, we need to understand how to take that shock. Shock लोग नहीं ले सकते, shock taking is very difficult. तो वन थिंग विच आई एंड माय फ्रेंड्स डू हियर इज कि हम लोग ये स्ट्रेस ट्रेनिंग बहुत करते हैं। स्ट्रेस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी मार्शल आर्ट्स, टाइकांडो है, बांडो है, शोतोगान है, खुदा जाने क्या क्या है जो हमारी लड़कियां बड़ी करती हैं। उसमें कांटेक्ट नहीं होता। कांटेक्ट मींस यू आर नॉट अलाउड टू हिट योर ओपोनेंट्स प्रॉपर्ली। मतलब आप किसी को यूं हिट करोगे, जोर से लग गया मुझे, दैट इज यूजुअली अ पेनल्टी। वेरी फ्यू एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें मारना अलाउड होता है। तो इसमें मसला ये होता है, यू आर अलाउड टू डांस, यू आर बेसिकली डांसिंग, यू आर नॉट फाइटिंग। तो आपने क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइट्स क्या होती हैं, आपको मार खानी किस तरह है, मारना किस तरह है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है। नो मैटर हाउ गुड यू आर, आपको एक थप्पड़ लगने में सब दिमाग घूम जाता है बंदे का। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तफरी वाले जो दोस्त एक दूसरे को मारते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ये लड़कों की बात ही मैं कर रहा हूँ। लड़कों को भी हम स्ट्रीट फाइट्स में स्ट्रीट डिफेंस की बात कर रहे होते हैं या सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। द मोमेंट यू आर अंडर प्रेशर, मुक्का लगा, किसी ने गिरबान पकड़ के खींचा, 2-3 गालियां पड़ी, you get confused, you get stressed, आपको जो कुछ सीखा होता सब निकल जाता है। So for that you need to train. There is no shortcut. अक्सर लोग कहते हैं कि हम 1 महीने की वर्कशॉप करा रहे हैं, 2 महीने की, 3 महीने की। 2 या 3 महीने में इट इज इम्पॉसिबल कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो जाए, आपका रिएक्शन इतना अच्छा हो जाए, मसल मेमोरी इतनी अच्छी हो जाए कि यू कैन डिफेंड अगेंस्ट सर्टेन अटैक्स। अच्छा फाइटर को चोटें लग सकती हैं यार, तो एक अनट्रेन्ड बंदा जिसने 2-3 महीने कुछ सीखा हो, वो कैसे इतना अच्छा रिएक्ट कर सकता है? 4 साल बीबीए करने के बाद भी लोगों को सही सीवी बनानी नहीं आती। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग सारे बिजनेस स्टूडेंट्स हो, तो 4 साल आप लोग ग्रेजुएशन करते हो अपनी, उसके बाद भी पीपल मेक मिस्टेक्स, यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। तो दिस डज नॉट मीन कि आपने 4 साल सीखना होगा या मार्शल आर्ट्स करने होंगे, बट डू नॉट अज्यूम कि 1-2 महीने की टेक्निक सीख के यू कैन बी प्रैक्टिकली वेरी एफिशिएंट। माय पॉइंट बीइंग, practice and be consistent and understand the concepts and realities. Self-defense is not a joke. It is an extreme thing. It is an extreme situation which has to be taken very seriously. खुदा ना खासा जब आप उस situation में आओगे, पहले तो आपने avoid करना है, prevent करना है, do everything you can to stay out of that situation. खुदा ना खासा situation में आओगे, you have to explode like a bomb and get out. There is no winning. आपने फट के निकलना है. That is what self-defense is all about. खड़े होकर लड़ना नहीं है। The person who gets home safe, उसने सेल्फ डिफेंस किया है। आपने 10 बंदों की पुट लगा दी, एंड में किसी ने गोली मार दी आपको, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट सेल्फ डिफेंस। ओके, थ्योरी में किसी को, हाँ निदा आपने हाथ उठाया है, क्वेश्चन है, प्लीज पूछें। जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जब आप सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस फिजिकली, तो इज इट बेटर ना कि आप उस मतलब जिसको भी आप सिखा रहे हो तो उनको उस सिचुएशन में आप डालें, सो दैट वो खुद ही उस सिचुएशन से मूव ऑन करे या उसको कोप अप करें? डेफिनेटली, बिकॉज जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं आएंगे तब तक आप अपना स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। आई गेस हम सीख भी नहीं सकते। डेफिनेटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार। एक हमारी स्टूडेंट है फबिया, वो आज आ नहीं सकी, शी हैड सम आई थिंक क्रिसमस प्लान्स। अगर वो आती, मैं उससे आप लोगों की बात करवाता, और शी जॉइंड अस लाइक 2 months बैक, a very good puncher, very good boxer type of a person. अब
जब मैंने उससे थोड़ा खेलना शुरू किया, मतलब हमारे स्टांसेस चेंज होते हैं, बॉक्सिंग कर रहा हूँ, शी इज वेरी गुड, शी इज हिटिंग एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग शी वांट्स, बट जहां मैंने अपना हम्म स्टांस चेंज किया, आई स्टार्टेड किक्स एंड स्टफ लाइक दैट, फॉरन कंफ्यूज, अबे क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। तो मैंने स्टांस चेंज किया, शी गॉट कंफ्यूज्ड। तो दैट इज समथिंग यू अंडरस्टैंड कि आप उस सिचुएशन से जब गुजरोगे, ओनली देन यू विल रियलाइज कि इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एंड यस, जब फिजिकल क्लासेस होती हैं, यू नीड टू बी पुट इन सर्टेन सिचुएशंस जहां आप उन चीजों से रिएक्ट कर सको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड। ओके नाउ आई विल जस्ट शो यू अ फ्यू टेक्निक्स। देखो, ये टेक्निक्स दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यू अज्यूम कि हमने बहुत कुछ सीख लिया और आपने जाके लोगों को मारना शुरू कर दिया। इट इज सिंपली टू अंडरस्टैंड कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, इन सिचुएशन में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो आई रिपीट, दिस डज नॉट मीन कि ये सेशन लेके आप लोग ट्रेन हो गए हो, या सेशन लेके यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, यू स्टार्ट पिकिंग फाइट्स, बिकॉज दिस इज, कहते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, एंड इवन दीज कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट बीइंग प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर। यूट्यूब जाओ, आपको 50 वीडियोस मिलेंगी, और ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में चाकू है, मैंने चाकू किसी को मारा, लड़की ने पीछे हुई, लड़की ने एक हाथ नीचे किया, उसके हाथ से चाकू गिर गया, दूसरे को पकड़ लिया, एंड सो ऑन। ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो अ लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच यू सी आर यूजुअली फेक। So they are usually fake, or yeah, they are being instructed or shown by people who are not officially trained. So you need people who are Rafi, देखेंगे please? So you need people who are competent, who are educated, and they know what they're doing. और आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हो, तो जब इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसको सुनो एंड समझो क्या बोला जा रहा है। जब आप सोचोगे, सुनोगे, समझोगे, देन यू कैन इवैल्यूएट कि बातें बोली जा रही है और बकवास तो नहीं है, सही भी है, नहीं है। आजकल कोई भी आपको कोई उठाने के लिए आ रहा है, हरास करने आ रहा है या किडनैप करने आ रहा है, वो चाकू पकड़ के नहीं आएगा, बाजी चले, तो वो यूं नहीं मारेगा बैठ के, वो खामोशी से आएगा, आपकी गर्दन पे रखेगा या कमर पे रखेगा, तो बेटा चलो। इस तरह होता है। They don't tell you this. You're not prepared for these things. It is something which is very explosive. Okay, guys, give me 1 minute. आगे नीचे आ गया। तो आज को क्या है ना यार, यार मेरे जो पार्टनर हैं, ये अभी 1 मिनट में आ रहे हैं। Then I will ask him to basically help us practice certain techniques. तो अभी हम लोग 3 डोमेन्स की टेक्निक्स करेंगे। आई थिंक वी हैव 10-15 मिनट्स। तो वी विल टच द ग्रीन जोन, वी विल टच द येलो जोन, वी विल टच द रेड जोन। ग्रीन जोन दूर वाला है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो रहे हैं, दूर से हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। सेकंड है, अगर करीब बंदा है, हम उसमें क्या ट्राई कर सकते हैं। एंड अवर फर्स्ट गोल विल बी इवेजन, उसमें भी हम कोशिश करेंगे एंगेज ना करें, बच्चे दूर रहे। फाइनल स्टेट है रेड में, जब हमें कोई पकड़ने की कोशिश करे, हरास करने की कोशिश करे, उसमें हम क्या करेंगे। उसमें भी हम बहुत बेसिक टेक्निक्स करेंगे, हम बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज टेक्निकल डिटेल्स में ग्रैपलिंग आती है। ग्रैपलिंग अगर आपको सही नहीं आती, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। और अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की एंड यू हैव एन आर्टिफिशियल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका प्रॉब्लम ये होगा, यू विल पुट योरसेल्फ इन मोर डेंजर। आप किसी के करीब जाओगे, उसको पकड़ लोगी या हाथापाई करने की कोशिश करोगी, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू पुल इट ऑफ। इसका नुकसान क्या होगा, अगर आप दूर से भाग जाते, यू वुड हैव बीन सेफर, बट आप करीब आके आपने उसको पकड़ा टू मेबी थ्रो हिम और चोक हिम, बट आप नहीं कर सकी। सो एज अ रिजल्ट यू हैव पुट योरसेल्फ इन मोर डेंजर। तो दैट इज आल्सो एन इशू। तो हम एडवांस टेक्निक्स में जाते हैं, व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली देयर, वी नो दे आर एबल टू डू दीस थिंग्स, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। सो हम थोड़ी बेसिक चीजें करेंगे। गाइस गिव मी 1 मिनट, मैं बस अपने पार्टनर से कोऑर्डिनेट करूं, फिर मैं टेक्निक सिखाता हूं। ओके।
गाइस हम लोग नजर आ रहे हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। आवाज में तो प्लीज पूछ लीजिएगा। Rafe श्योर सर। has agreed to help us out, so thank you, Rafe. He is a doctor by profession. He is a old student of ours, and he is very cooperative. इसको पता चलेगा आप लोग की वर्कशॉप हो रही है, so he has volunteered for this. So obviously we'll try not to be very violent, but हम थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे, okay? हमने जब रेड जोन की बात की थी, देखो रेड जोन is something like this कि I am close enough to him or he is close enough to me. हम लोग खड़े खड़े I can touch him or he can touch me. This is the danger zone, okay? I would say yellow zone is something like this, 3-4 feet. तब लगता बहुत दूर है, but in reality it is not safe. लोग over confident रहते हैं कि this is a safe area. Why? With one step I can still touch him or her. So it's not that safe either. But I still have time to react to something. Red zone would be 8 to 10 feet. 8 to 10 feet से मुराद ये है कि अगर मुझे पता है कि ये कुछ करना चाह रहे हैं, he needs to take 2-3 steps. Yeah, I need to take 2-3 steps. So he will have time to react. Yeah, I will have time to react. अब अगर ये मैं एक मासूम सी खवातीन हूँ और मैं इसको बहुत अच्छी लग रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये हरास करना चाह रहे हैं और मेरी तरफ आना चाह रहे हैं, अब मैं आपको गोल्डन रूल दिखाऊंगा कि ग्रीन जोन में एक प्यारी सी खवातीन क्या कर सकती है. So will you try to approach me? आपने भाग जाना है. ग्रीन जोन का एडवांटेज ये होता है, यू हैव टाइम टू रन अवे, यू हैव अ डिस्टेंस, यू हैव समथिंग वेयर यू कैन रिएक्ट. तो ग्रीन जोन में रिएक्ट इंगेज नहीं करना है. द बेस्ट थिंग इज रन अवे. क्या चीखो, शोर करो और पीछे हट जाओ. एक और चीज ये है कि इफ ही और शी इज ट्राइंग टू कम टू मी, मैं आसपास कुछ देख सकता हूं, मेरे पास कोई चीज है मारने के लिए, या मेरे पास बैग होगा, आई कैन थ्रो इट एट हिम. मेरे पास कोई नीचे चीज पड़ी मैं उठा के फेंक सकता हूं. आई कैन हैव समथिंग एज अ डिटरेंट. आई कैन स्टार्ट शाउटिंग. इफ आई हैव अ पेपर स्प्रे और अ टेजर, मैं वो निकाल सकता हूं. आई विल हैव दैट टाइम. आई विल हैव 2-3 seconds to react. So that is a place where you basically run or you avoid this conflict. This is the green zone because it's the safest zone. Second is the yellow zone. 2-3 फीट का फर्क है. क्या है सर बोले सर अगर उनके पास गन हुई तो गन हुई तो यू आर स्क्रूड ना. ये तो बोल रहा हूँ, वो एक अलग चीज, एक्सट्रीम केस है. गन अच्छा ग्रीन जोन तो होगा नहीं. गन में इट इज ऑलवेज द रेड जोन. जब रेड जोन है उसमें फिर आज एक कार है, आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इंगेज करोगे जब आपको पता है, आपको खतरा है. अगर वो आप क्योंकि रेड जोन में तो आपको पता होता है कि आप हिट होगे लाजमी. तो और मगर वो भी ध्यान में रखो, अगर वो बंदूक लेके आया है भाई और ये मेरा मोबाइल छीन रहा है या मेरे मुझसे पैसे ले रहे हैं, अगर आप लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, ज्वेलरी ले रहे हैं, डू नॉट इंगेज. दे दो, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स देख. तेरे पास अगर पैसे है इट इज फाइन, दे दो यार, आ जाएंगे. यस, हरासमेंट हो रही है, रेप हो रहा है, किडनैपिंग अटेम्प्ट है, उसमें बंदूक है, देन यू कैन गो फॉर द टेक्निक्स टू वर्क. और गन की और नाइफ की टेक्निक्स है, दैट इज समथिंग यू वुड नॉट डन इन द फर्स्ट क्लास. ये वो चीजें जो आप एक 4 महीने नहीं सीखोगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक मूवमेंट, बेसिक कोऑर्डिनेशन. उसके बाद आप एडवांस टेक्निक्स पे जाओ. क्यों? अगर आपको बंदूक छीननी सिखाई जाती है, यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. दूसरे के पास बंदूक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है भागने की, आप भागोगे नहीं, यू विल एंगेज. भागने से आप बच सकते थे, एंगेज से आप ज्यादा खतरा आपको. तो जब आप बेसिक चीजें सीख जाते हो फिर आप एडवांस टेक्निक्स पे जाते हो. ओके, ठीक है. हम क्लोज क्वार्टर की तो टेक्निक्स सीखते हैं. सेकेंडली येलो जोन. येलो जोन अगेन नॉट दैट सेफ. मेरे हाथ में छुरी होगी, आई कैन सिंपली स्टैब हिम. सेफेस्ट थिंग इज ये आ रहा है, मैं फ्रंट किक करता हूं, आपको नहीं मालूम फ्रंट किक. ये आ रहा है एंड आई एम गोइंग फॉर अ फ्रंट किक. दिस लुक्स लाइक अ वेरी बेसिक किक बट इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग किक. इसमें एक चीज दिखाता हूं मैं मारना किया है. फिजिकल होता है, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं. मेरा जो पैर है
मैं उठाऊंगा नहीं, मेरे पैर का नकल है यहाँ पे, गोल बॉल सब कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नकल ऑफ द फुट। मैं जब पैर उठाऊंगा मेरा पैर बेंड होगा, आप देख रहे हो ये, एंड आई विल ओनली टच दिस बॉल वाला पार्ट, इट इज बेसिकली लाइक अ पंच। तो मैं पैर सीधा नहीं उठा रहा हूँ, आई एम बेसिकली लिफ्टिंग माय नी using my lower thighs, hips and lower back muscles to pivot my back and thrust it in. So this is a very powerful kick. अगर मैं आपको एक डेमो दे सकूं, अभी मैं 10 पावर से बस आपको रिवर्स कर दूंगा। नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। मैं given that पुराने कहते पुराने चावल है, मैं भी आपको 20% पावर से मारकर दिखाऊंगा। He will easily take this। बस बताना कि रीजन ये अनएक्सपेक्टेड अनट्रेन्ड बंदे को कितनी जोर से लग सकती है। मैं खड़ा हूं, लूज खड़ा होकर किक मार रहा हूं, इतनी पावर नहीं लगा रहा, इट्स अ वेरी पावरफुल किक। तो मैं मारूंगा इट्स ये तो आने का रीजन ये, it can generate a lot of power। अपनी thigh muscles हैं, they are the biggest muscles of your body, thigh, hips and lower backs, इन तीनों में ये expand है। So one simplest thing you can do is learn this kick। It is उठाया, पीछे bend हुए, engage your thighs, hips and back and kick straight। So this is a very powerful thing। अच्छा, एक और चीज देखो, any technique which you will do, इसमें ध्यान में रखो कि you need to use multiple muscles। इसे कहते हैं compound movement। हमारे यहाँ पे लड़कियों को देखे हैं सब डिफरेंस सिखा रहे होते हैं ना, ये मुक्का, फलाना मुक्का, ऐसा कुछ नहीं होता। when you punch you need to go in multiple movement यूज करो, नहीं मारे ऊपर लेके आओ, पूरी मूवमेंट लाओ। you need to compound these things। ब्रूस ली का नाम सुना किसी ने? ब्रूस ली का नाम? जी सर सुना। उसका एक 1 इंच पंच बड़ा मशहूर था, उसमें he used to punch a person आधे इंच से, मतलब ये है ना, यहाँ से मुक्का मारता था और बंदा 10-12 फीट दूर रहता था। तो लोग समझते थे इट्स मैजिक, बट इन रियलिटी वो यूं नहीं मारता था, उसकी पूरी बॉडी, पूरा शोल्डर, पूरा बॉडी वेट यूज होता है। अभी मैं आपको स्लो में दिखाऊंगा क्योंकि सारे को लग चुकी है, दोबारा गलती नहीं करना चाह रहा मैं सिर्फ मोमेंटम दिखा रहा हूँ कि मैं 9 इंच पंच कर रहा हूँ, देयर इज नो इंच, 1 इंच भी नहीं है। इसमें क्या होगा, लोग टारगेट को देखते हैं, आप टारगेट नहीं देखो, मेरी बॉडी को देखना कि मैं कहूँ यूं बॉडी लाऊंगा, मेरी बॉडी अंदर आती है and I convey my body weight on my opponent। So I move forward and I basically push। It's called stroke and body movement। तो मैं so it is बस झटका दो अपना। So whenever you hit someone, जो भी टेक्निक करोगे, use your entire body। These are the principles। अब ये अगर मैं दोबारा प्यारी सी लड़की हूँ, ये मुझे हरास करने आ रहे हैं, पकड़ने वालों को हाथ होता है, देखो यू नीड टू मूव आउट। मैंने जरूरी नहीं है पकड़ना है, ये ऐसा मुझे पकड़ लिया उसके बाद ही मैंने कुछ करके टमाटर मारना है, इसको ऐसा जरूरी नहीं है। वंस आई एम ग्रैब्ड इट इज डेंजरस। आप क्या करोगे, ये मैं येलो जोन की बात कर रहा हूँ, रेड जोन में पकड़ना नहीं तो येलो जोन में पकड़ सकते हैं। पकड़ने आओगे, आई विल मूव, मैं मुंह हटा रहा हूँ, इसके हाथ को मूव आउट कर रहा हूँ, इसके हाथ को मैंने रोका नहीं है, बिकॉज़ ही कैन बी मोर पावरफुल देन मी। मैं रोकने का पावर नहीं लगाऊंगा, मैं मूव आउट कर रहा हूँ इसके हाथ को। इट्स बेसिकली कॉल्ड सर्कुलर मूवमेंट। ये साथ से करोगे प्लीज, आई एम मूविंग दिस हैंड आउट। दोबारा ये, तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिस करोगे, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनेगी। खुदा ना खास्ता ऐसा होगा, मेरा एक हाथ मुंह पे आएगा, मुंह बचाने के लिए, क्योंकि मुंह इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ योर बॉडी। दोबारा करो प्लीज, एक हाथ पीछे और ये, क्यों, इन केस अगर छूट जाता है, मेरे मुंह पे आ रहे कुछ कर रहे हैं, आई हैव सम अनदर हैंड टू डिफेंड माय सेल्फ। दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज वर्बल डिटरेंस। चीखो, जोर से धमाका होता है, आपकी हालत खराब हो जाती है। दिस इज अनदर थिंग यू कैन डू। अगर ये ला रहे हैं, मैं हाथ उठा के जोर से चीखूंगा, नो
नहीं चीखो, तो वर्बल डिटरेंस की बड़ी चीज होता है। अब इसके आगे नाउ these were two defensive techniques. We will go one step further towards an offensive technique. अब इसमें अगर ये मैंने किया और इसका हाथ हट गया, अगेन गारंटी नहीं है, हट गया, मिस हो गया, देयर 50 थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक से अगर नहीं हुआ, इसने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, उसका सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप होता है, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। अब ये ऑफेंसिव टेक्निक है, ये आ रहा है, मैंने इसका हाथ हटाए। अब एक चीज ध्यान में रखो कि मैंने इसका हाथ बाहर से अंदर किया है। Why? Because he cannot use his other fist. अगर मैंने इसका हाथ यूं किया होता, इसका दूसरा हाथ ओपन है, ये मुझे मार भी सकता है, मुझे पकड़ भी सकता है, तो मुझे कोई फायदा नहीं है। So I need to move his hand inside, ताकि इसकी ये जगह आउट हो जाए, he cannot hit me. अगर मैंने इसका यूं कर दिया, I or you can hit him or attack him. जब मैंने हटाया, I can punch him on the face. और आप माशाल्लाह तेरे मोटे-मोटे बाइसेप्स वाली नहीं है, तो आपने एक मुक्का नहीं मारना, बहुत सारे मुक्के मारने। This is the principle of Krav Maga. हाथ हटा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक दफा नहीं, multiple times, जब तक गिरेगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं समझ आ रहा, हाथ हटाया, सर पकड़ा, नी शॉट। सर जी मेरा एक सवाल है कि अभी तो जैसे आपने मल्टीपल पंच किए, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे, अगर सामने वाला रिएक्ट भी कर रहा है, वो भी अटैक कर रहा है, तो उस सूरत में क्या करना है? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसीलिए मैंने शुरू में आपको बात बोली थी, स्ट्रेस ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। स्ट्रेस ट्रेनिंग में यू हैंडल हाउ पीपल आर एक्टिंग एंड यू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अभी अच्छा आपने पॉइंट बोल दिया, मैं इसका सिचुएशन का डेमो भी दिखा दूंगा आपको। ओके, हम जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, ये आप जो बात कर रही है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हमारा ओपोनेंट अगर रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, पहले मैं दूसरी साइड से दिखा देता हूं आपको, फिर रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी दिखा दूंगा आपको। अब इस हाथ से करते हो, अगर इस हाथ से कर रहा है, मैंने हाथ हटाया, नाउ आई हैव एक्सेस टू हिज फेस, मैंने 1 2 3 4 मुक्के मारे, अगर होपफुली अगर अच्छे मुक्के मारूंगी, जोर से मारूंगी, ही माइट सडन हिलेगा, तो आई माइट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रन। नई अपॉर्चुनिटी मिल रही, लग रहा है अभी भी हैवी बनना है, 2-3 आपके मुक्कों पर पावर नहीं है, एटलीस्ट 2-3 मुक्कों से हिल जाएगा, जरा मौका मिलता है, बाल पकड़ो, तो जोर से मुंह नीचे रखिए, आपको नी शॉट मारो। अगेन नी शॉट में एक नहीं मारा जाता, 2 3 4, अगर इसकी गर्दन पर आपकी जो लोअर नेक होती है, दिस हैज अ लॉट ऑफ न्यूरॉन पासेस, इस पे एल्बो मारो, कुछ मार सकते हो मारो, क्योंकि अगर आप यहां में मार दिया, मुंह पे 2-3 घुटने पड़ गए, बंदा वैसे ही हिल जाता है, उसमें यूजुअली बंदा काफी होता है बंदे को जाने के लिए। अब इफ ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम लोग उसका करते हैं once you have gone through a certain degree of training, उसमें you know let's say 10-15% techniques, so you can play with that. Let's say अगर ये हाथ ला रहे हैं और मैंने स्लिप करने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली लेट्स से ये स्ट्रॉन्गर मुझसे नहीं हुआ, या तेज स्पिनर ने मुझे पकड़ लिया, एक एग्जांपल ये राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज अ सेपरेट थिंग, इसमें हम लोग करते हैं, क्राफ्ट मागा भी हम लोग करते हैं, हमने किक बॉक्सिंग की वेरिएशन भी की थी। इफ आई गेट कॉट, सर अगर एक से ज्यादा लोग हों तो देखो 2-3 चीजें ध्यान में रखो, यू विल नेवर वांट टू कन्फ्रंट पीपल इफ दे आर मोर देन 1 पर्सन, बट अगर ऐसा होता है यू विल नॉट एंगेज, यू विल अटैक एक्सप्लोसिवली एंड गेट आउट। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, बट अच्छे से अच्छा फाइटर भी जब 2-3 बंदों से लड़ता है, ही इज इन अ ह्यूज हैंडीकैप। तो इजरायली फिलॉसफी क्या होती है, एक को मारो निकलो, दूसरे को मारो निकलो, तीसरे को मारो निकलो, निकलो मारना है आपने, आपने क्यों एंगेज नहीं करना है। यहां तक कि अगर रास्ते आ रहे हैं ना, मुझे आओगे प्लीज, मैंने किक मारी, इसको पीछे का भाग गया, मेरा गोल ये है, मेरे को खड़े होकर लड़ना नहीं है, तो बेसिक फिलॉसफी ये रखा, मैं खड़े होकर लड़ना नहीं है। सेकेंडली इसने हाथ पकड़ने आ रहा है, मैं बचाने की कोशिश नहीं बच सका, इसने मुझे पकड़ लिया, देयर फर्दर टेक्निक अकीदों में होता है, आई कैन डू दीस थिंग्स। इसमें अगर मैंने उसको लॉक कर लिया,
ये नहीं कर सकता कुछ, तो अभी आपकी बायोलॉजिकल लिमिट्स आती है। सेकंड किक बॉक्सिंग की टेक्निक होती है, बट दिस हैज टू बी डन एक्सप्लोसिवली। अगर मैं खड़ा रहूंगा ये मारेगा, ये शराफत से खड़ा नहीं होगा। अगर दोबारा बताओ, मैंने किया, मैंने पकड़ लिया, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसी सेकंड में मैंने जैसे पीछा तो मैं एल्बो मारूंगा। दोबारा प्लीज करो। क्राफ्ट मागा की टेक्निक होती है, अगर इस गलती से मैंने क्या नहीं हुआ, पकड़ लिया, I can move in and bend his elbow. मैं move in करूंगा, I bend his elbow. अब ये मुझे साथ से पकड़ भी सकता है, तो I have to do it very fast. मैंने behind the neck मैंने इसको मार ले and knee shot मार ले। अब जैसे आपने बोला यार बंदा रिएक्ट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। पहली टेक्निक पे मैं रेजिस्टेंस करूंगा, आपकी स्लॉट मैंने हटाया, अब he can resist। जैसे आप कहना चाह रही हो जोर लगा सकता है, फॉर एग्जांपल he can try to push me out। तो मैंने एक चीज पे नहीं करना है, मुझे मुक्का मारने की कोशिश करेगा तो इसकी पावर वैसे की हाफ है, क्योंकि मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। सेकंडली दूसरा हाथ मेरे मुंह की तरफ है, इनकेस मारने की कोशिश करेगा आई कैन हिट हिज फेस इंस्टेड। इसके मुंह मारने की कोशिश करूंगा, बाल पकड़ूंगा, वी विल ट्राई टू रेजिस्ट। अगर मैं करीब हुआ, दिस इज अ डेंजर जोन, दिस इज समथिंग आई डोंट वांट। अगर मैं स्पेस में आ गया, he has an advantage because he's physically stronger, so everything that I can do and I will be explosive। मैंने फौरन करनी और खत्म करना है। इसीलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दूर से लड़ने का तरीका, फिर मैं रेड जोन में आऊंगा। रेड जोन इज बेसिकली मोर एक्सप्लोसिव। गिव मी 1 मिनट, ओके। मैं आया, मैंने मुक्का शुक्का मारा, ये रेजिस्ट भी करता है, मुझे बंदा पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया, वो नहीं करते। दिस इज वेरी कॉमन जब खवातीनों को होता है। ये थोड़ी सी एडवांस चीजों में आता है, तो हम इसमें डिटेल में जाना चाह नहीं रहे, बट इन केस मैं इसमें एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। यार बायोमैकेनिकल लिमिटेशन देखो, आपकी जो नेक है, अगर ऐसी सिचुएशन में पकड़ना है, इसकी देयर आर मेनी टाइप्स। एक तरीका ये होता है, एक होता है मेरे हाथ नीचे है, एक है मेरे इससे बेस से पकड़ना, देयर मेनी एंगल्स। बट बताने का रीजन ये बायोमैकेनिकल लिमिटेशंस हर जगह अप्लाई करते हैं। तो ह्यूमन बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसकी जो गर्दन है, मैंने सर पर सिर्फ पिवट करना है, तो मैं घुमा रहा हूं, मैं जोर नहीं लगा रहा हूं, मैंने पिवट करना है, ही विल गो डाउन। तो देयर आर मेनी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस, इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज मोर ऑफ एन अवेयरनेस सेमिनार। आप अपने स्टूडेंट्स को या मेंबर्स को नहीं सिखा सकते विदाउट हैविंग अ फिजिकल क्लास। आप जब तक फिजिकली नहीं होंगे, आप देखोगे नहीं कि कितना जोर लग रहा है, क्या एंगल्स है। यू आर वाचिंग अ 2D पिक्चर, इसमें और रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। ओके, बस लास्ट 5 मिनट्स में कंक्लूड, 5 मिनट ज्यादा हो गए, बल्कि जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टू कंक्लूड। ओके, रेड जोन है ये। रेड जोन में जब आप आ गए, खतरा है आपको, यू आर स्क्रूड। कुछ भी होता है, आपने अपने हाथ उठाने ऊपर, दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेव योर फेस एंड टू अटैक। अब मैं अगर आता हूं, अब तक तो 2-3 चीजें, अगर ये मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, मेरा गोल क्या होगा? टू अवॉइड एन अटैक। सिंपलेस्ट अटैक क्या है? मुक्का है, ग्रैपलिंग दूर की बात है। अगर ये क्या करेगा, ब्रेसर है, क्या करोगे? पकड़ने, फॉर एग्जांपल पकड़ने के लिए मुझे आता है, पकड़ने के लिए आओगे, मैं मुक्का मार देता हूं, पहले मुक्का मारना है। फिर अगर ये स्ट्रॉन्गर, एक मुक्का 2 मुक्के, और प्रॉब्लम होता है, यू विल नॉट डू दिस थिंग्स अनटिल यू आर नॉट ट्रेन्ड। अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग अच्छी है, तो सिंपली गो फॉर अ किक ऑन द फेस, दैट इज एक्चुअली मोर एग्रेसिव। स्ट्रेचिंग अच्छे से, रैपिड ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्रंट के मुंह को मारने के लिए, मुंह को मार सकते हैं ऐसा कर। तो ये अगर मार तो गाय नाक पे लग सकती है, हिल पे लग सकती है, वो एड़ी पे रहो, चिन पे लग सकती है, चिन पे लग सकती है, इट्स वेरी डैमेजिंग। अब अगर देखो जी कि आपको मुक्का मारे, जो मार दिया तो वो ज्यादा वो बन जाता है, इनको आया इसमें कैसे मार दिया, तो फिर मुक्का मार इस पर ये मार सकता है, मैं मार सकता नहीं, वो मार अटैक आ रहा है। तो ये चीजें है ना, फिर हाथापाई स्टार्ट होती है। जैसे अभी एक बंदे ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है कि अगर एक लड़की रिएक्ट करेगी या डिफेंड करती है, तो दूसरे में ईगो भी आ सकता है, उसके टेस्टोस्टेरोन भी पंप करते हैं, देयर अदर हार्मोन्स भी पंप कर जाते हैं, बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इसलिए वी डू नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस फाइट। ये लड़ाई नहीं है, इट इज सर्वाइवल। तो मैंने इसके सामने खड़े होकर लड़ाई नहीं करनी है, मेरा जो काम है आना है, एक्सप्लोर करना है, निकलना है। तो आई विल नॉट फाइट। अगर मेरा गोल होगा
आई विल सिंपली एक्सप्लोर। अब मसला ये आप लोग यहाँ पे हो नहीं, तो आप लोग मुझे अपने कुछ आइडियाज बताते हैं, आई विल शो यू सम काउंटर्स, बट अपने तरीके से मैं 2-3 चीजें दिखाता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन लेट मी नो। मुझे सब पकड़ लिया, हरास कर रहे हैं। अब ये लड़कों को तो गिरवान पकड़े आते हैं, लड़कियों को एटलीस्ट सभी के स्टार्टिंग में गिरवान से पकड़े आते हैं। अगले समय पकड़ लिया, देयर सम बेसिक टेक्निक्स। मैं इतने आराम से खड़ा नहीं होऊंगा, बट सिंपली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई हैव टू बी वेरी स्टेबल। और ये भी एग्रेसिव कर नहीं रहा, हम एंड में बस एक एग्रेसिव चीज करके दिखाएंगे आपको। व्हाट कैन आई डू? अगर इसका हाथ सीधा है, he is stronger than me, I cannot come close to him, मुझे फुल एक्सटेंड टू, मैं इसे मुंह पे मार भी नहीं सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इसमें मुझे सबसे पहले डैमेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको, आई नीड टू ब्रेक दिस। ब्रेक में आई यूज माय एल्बो। आई नहीं है हमारे पास मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। सॉरी, इधर हो, मैं भी ना आवाज नहीं आ रही तो भैया म्यूट योर माइक। तो आई विल ब्रेक हिज लिवर। मुझे इसको बेंड करवाना है। बेंड करने के लिए आई विल यूज माय बॉडी पावर। आई विल स्टेप इन, और मेरा बॉडी आएगा तो आई कैन मूव माय हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन। यहां पे बेंड हो रहा है, आई विल हिट हिम और डू समथिंग लाइक दिस, करीब आने के लिए। इसकी और एग्रेसिव टेक्निक्स होती है, मैं रोल वाला ध्यान नहीं देता उसमें। गिराने का तो भी घेर ले रहा बैठ के, मैंने अंदर आया, मैंने रोल डाउन, ये इससे नीचे गिरता है बंदा बैठ के। इस साइड से करो, इसके साथ देखो। एक और चीज है, अगेन डू दिस फर्स्ट, प्रैक्टिस करो। ये जो अभी टेक्निक मैं बता रहा हूँ, उसका एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है एंगल समझने में। मैं हाथ ऊपर लाऊंगा, अंदर आया एंड आई रोल डाउन, तो बंदा मेरे मूवमेंट से नीचे गिरता है। बट एंगल गलत होगा तो आप इसके हाथों में ही गिरोगे, इट्स मोर डेंजरस फॉर यू। हाथ पकड़ा अकीडो की टेक्निक्स होती है, मैंने हाथ मोड़ के बायोमैकेनिकल मूवमेंट लिया है यहाँ। इसमें यह है कि ही इज स्टक, मैंने इसका बहुत पेन होता है इस एंगल के अंदर। इस एंगल मैंने पकड़ा तो दिस इज अ स्मॉल जॉइंट टेक्निक। मैं अगर जोर लगाऊंगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, पैरों में नीचे आता बिल्कुल। इट्स अ वेरी पेनफुल टेक्निक। इसके फर्दर वेरिएशंस होते हैं, इसको मैं फोटो वॉशिंग में लेके आता हूँ। इसको नीचे रखा है, इसमें यह है कि ही इज एक्चुअली स्टक हियर। अगर मैं इसको होल्ड में लेके जाना चाह रहा हूँ तो इसमें ये टेक्निक आती है, होल्ड में आया नीचे बंदा, तो इसमें दिस इज द होल्डिंग टेक्निक। The simplest which I would advise you is कि grappling में मत जाओ पहले, क्योंकि grappling requires better muscle memory. It is easier to use your fists and kicks, at least front kick सीखो, this is the easiest. एक मुक्का मारना सीखो। ये कुछ करने वाले से मेरे जवान पकड़ा, कहते पागल हो जाओ, पागल हो जाओ, नहीं समझ आ रहा, मुंह पे मारो, ये मारो, मुझे भी एक मारो, काटो, मैं हाथ ब्लॉकिंग थोड़ी सीखो। एक को लग गया इशू नहीं है, बट यू नीड टू गेट आउट। इसे कहते हैं डिनायल, मिलिट्री टर्म, एरिया डिनायल होता है। आप अगर मार्केट उसको हरा नहीं सकते तो नुकसान दो ताकि वो कुछ नहीं कर सके। आपने रशियन को, सोवियत यूनियन को हराया नहीं था, उनको डिनायल दिया, नुकसान दिया, वो तंग आके चले गए। कुछ भी कर रहे हैं, हटाओ, मारो, बचने की कोशिश करो, फिर बचो, कुछ करो, ब्लॉकिंग करो, कुछ हाथापाई हो रही है, करो, मारो, मारो, कुछ ना कुछ मारो, एक्सप्लोर, डू समथिंग। हमारा क्या होता है कि कुछ भी नहीं करना। फाइनल वन थिंग इज, आप जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि यू हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले स्ट्रीमलाइन सीखो, फिर रेजिस्टेंस की चीजें समझो। हमारी कुछ जिजित्सु में, सांबो में कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जब बंदा रेजिस्ट कर रहा हो तो उसमें लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसे मुझे आप समझ लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये मुझे पकड़ रहे हैं, अब हम करेंगे क्या, आपने पकड़ा मुझे, मगर आप हाथापाई करके कोशिश करें जगह पकड़, जगह पकड़ ले, किसी को पकड़ो, उसको आराम से। अब हम एक हल्का सा डेमो टाइप का करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर रेजिस्ट करते हैं तो छोटे लगने का खतरा होता है। मैट स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग नहीं है कि बंदा सर्जिकल थिंग दूसरे को, ये हाथ मेरा गला पकड़ रहा है, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग और ये रेजिस्ट कर रहा होगा, हाथापाई उल्टी सीधी करेगा, आई एम ट्राइंग टू रेजिस्ट, ग्रैप्लिंग करो, ग्रैप्लिंग करने का करो, क्या आई एम स्ट्रॉन्गर तो फायदा उठाओ और क्या करोगे। लड़की का फायदा उठाओ ना यार, प्यारी सी लड़की हूं, पर लड़की को मारोगे।
एग्जाम्पल कर रहे हो, गिरबान पकड़ रहे हो या गला पकड़ना चाह रहा, हक करना चाह रहे हो, नहीं आता और मैं टेक्निक्स करो, रिजस्ट करो। अब देखो, आई एम ट्राइंग टू होल्ड हिम और थ्रो हिम एंड ही इज यूजिंग पावर, बिकॉज आई एम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर आई कैन रेजिस्ट, बट लड़की के लिए प्रॉब्लम होगा। आई नीड टू फील फॉर हिज बायोमैकेनिकल लिमिटेशंस। अगर मेरा साइज छोटा है, आई कैन हिट माय हेड ऑन हिज फेस। upper area is relatively stronger on a broader area of impact. Secondly, angles देखो, मुझे पता है इसका जोर कहाँ से आ रहा है। I can move my body back. इसको मैं राइट ऐसे सोच सकता हूँ। तो आपने बहुत खाली आपने तो there are a lot of things आप देखोगे, resistance कहाँ से आ रही है, resist कर रहे हैं, उस एंगल के ऑपोजिट नहीं जाना है, उस रेजिस्टेंस के फ्लो में जाना है। अगर कोई जोर लगाएगा, मैं वापस जोर में लगाऊंगा, बिकॉज़ ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, नेगेट नहीं हो सकेगा। आई विल यूज देयर पावर। मोहम्मद अलाउद्दीन सही से मैं चेंज करना नहीं, एक तो मेरा सेशन नहीं है, मसला एक मौके इसने वॉलंटियर नहीं किया था। मोहम्मद हमारा स्टूडेंट है, तो यूनिवर्सिटी पकड़ लिया मैंने, तो प्लीज बर्दाश्त कीजिए सारे के साथ। अब देखो, फिजिकली ही इज स्ट्रॉन्गर, 14 साल के लड़के, ही इज यंगर, तो रेजिस्ट करने से प्रॉब्लम है ना। मैं अगर इसको पकड़ के धक्का देता हूँ, आप भी धक्का लगाओ मुझे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ आई एम मच बिगर देन हिम। तो यहाँ पे वी हैव टू यूज बायोमैकेनिकल एंगल्स ऑफ लिमिटेशन। मुझे पकड़ लिया। अब मैं अगर लड़की हूँ, आई विल यूज एक्सप्लोजन एंड डिटरेंस। मैं क्या करूंगा, नो, बेचारे की शक्ल थोड़ी सी सेमी हो गई है, क्यों, मैंने झटका दिया है और जोर से बोला नो। तो वर्बल डिटरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाथ से अगर नहीं हिला, आवाज से हिलेगा, आवाज से नहीं हिलेगा तो हाथ से हिलेगा, दिस आर इंपॉर्टेंट। अब सेकंड आप धक्का दूं, मैं आपको एंगल को लेकर थोड़ा फाइनल कर दूं, प्रैक्टिस की शुरू में आपको। अब देखो, अगर ये मुझे पकड़ना चाह रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। अब मैं धक्का दे रहे हैं, this is what you have to understand, how do you need to move weight and movement। जैसा मतलब प्लीज मैं रोकूंगा नहीं, मैं बैक कर दूंगा, ये आ रहे हैं, मैं धक्का को लेके जा रहा हूं, तो आई डू नॉट रेजिस्ट, आई विल मूव विद दिस। अब कोशिश करो मुझे दिखाने की कोशिश करो, एक मिनट में दिखाना चाहूंगा मैं करना क्या। अब देखो, दिस इज एन अनस्कल्पचर्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि you need to improvise। improvise आप कर नहीं सकते unless until you know how to fight। बात उसकी दिखाने की कोशिश की। very well। हाँ, right। अभी दो दिन लगाएगा सोचने में, ऐसे काम लगते हैं आप कुछ एलिमेंट लगाते हो, तो पता नहीं आपने बस गाइस हम लोग कंक्लूड करें एक दो स्लाइड्स पे दिखाने के लिए। फ्रंट किक ध्यान से देखो, फ्रंट किक की जो बात की थी, फ्रंट किक मारी जाती है पेट पे या मुंह पे। फ्रंट किक मारो दूर से, दूर से आ रहा है बंदा, पहले पेट पे मार दो, मुंह पे मार दो। अब अगर आपसे कह रहे करीब आ रहा है बंदा, एग्रेशन वाले एरिया में आ रहा है, easier is always to strike। अब देखो, मैं इतना करीब हूँ, इधर आओ, मैं इतना करीब हूँ, ये लड़कियों की अच्छा नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी लड़कियों की अच्छी होती है, बट दे आर एक्सेप्शंस। अगर आई एम हियर और मैं इसकी जैसे चोटी पकड़ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी सेक्सुअल और हरास करना चाह रहा हूँ, इसकी किक्स अच्छी है, इसे बताना चाह रहा हूँ। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा ये, तो यू कैन सिंपली किक हिम ऑन द फेस। अगर शिन लगती है, बंदे के 12 बज जाएंगे दोबारा। ये तो इतनी पावर है कि ये बंदे ने घबरा जा सकती है। और वर्बल डिटरेंस आप जब करते हो तो ऑटोमेटिकली उससे पब्लिक रिएक्शन के चांसेस भी अच्छे हैं। तो गाइस, अब प्रॉब्लम ये है कि सम थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड
which are only discussable because we are not physically available in front of each other. Physically अगर आप आते हो होते हो तो you can understand a lot of angles, you can understand a lot of things. क्योंकि अभी मैंने जैसे मोहम्मद के साथ मैं थोड़ा बहुत आपको ग्राफिंग दिखा रहा था, 90% चीजें आपको समझ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि इट्स अ विजुअल 2D रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये होता है कि आपको लग रहा है बंदे को आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हैं बस, यू डोंट सी एंगल्स कौन से यूज हो रहे हैं, क्या लेवरेज हो रहा है, क्या सर्कुलर मोशन हो रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन सेल्फ डिफरेंस या वर्कशॉप से लर्निंग आई वुड से इज नॉट समथिंग व्हिच इज आई वुड recommend something like that. इसीलिए the basic purpose of this workshop was to give you some basic awareness कि what are the realities, how brutal self-defense can be, आपको किस तरह बचना है और क्या क्या लॉजिक और एंगल्स होते हैं, इनको ख्याल रखो। बाकी हमने कुछ चीजें जो डिस्कस की, कुछ टेक्निक्स की बातें कर रहा हूँ, they are literally I would say less than 1%, I would say 0.5% टेक्निक्स है जो आप कर सकते हो, और ये 0.5% जो आपको दिखाई है वो आपको समझ रहे हो, आपको 10% भी समझ नहीं आएगी बिकॉज़ इट्स वर्चुअल में ये मसले होते हैं। दिस इज द रीजन आई थिंक निदा और आमना मैंने दोनों को कहा था कि अगर आप वर्कशॉप कराना चाहते हो इट इज ऑलवेज बेटर फिजिकल कराओ, बट ड्यू टू सम रीजन हम फिजिकल नहीं करा सकते। तो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, फिर हम कंक्लूड करते हैं बिकॉज़ आई थिंक डेमोंस्ट्रेशन से आगे कोई बात होगा। Guys, you have 2 minutes. कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो, फिर हम कंक्लूड कर देंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, इस तरह की जितने भी इंसिडेंटल चीजें होती हैं उसमें सबसे मेजर चीज हमारी होती है वो फेयर होता है, तो हमें फेयर से उस टाइम मतलब कोप अप करना कि क्या वेज हैं कि हम अपने फेयर से कोप अप कर लें। बिल्कुल एक्सीलेंट। यार एक मैं आपको I will relate this to one thing which I've experienced myself. I did taekwondo for 8 years. Taekwondo एक martial arts होता है जिसमें हम लोग टचिंग करते हैं, मतलब I touch my opponent, he touches me. Kicks बड़े अच्छी होती हैं, punches बड़े अच्छे होते हैं, but I'm not allowed to hit my opponent. As a result, मुझे ना मारना आता था ना मुझे मार खानी आती थी। तो यहाँ पे चैंपियनशिप होती है, I participated in that, और मैं प्रैक्टिस के लिए एक मुक्के पे मैं पड़ा था, जमीन पे मेरी हालत खराब हो गई थी। Because I fought a person जो full contact लड़ता था and he knew how to hit, he could take a hit, I couldn't. So then I learned कि जो मेरे style थे लड़ने का, it was more of a dancing rather than fighting. Then I switched my style. I went to Kyokushin karate. Kyokushin एक version था martial arts का, which was full contact. Full contact में होता है कि I hit my opponent with full power and he hits me with full power. उसमें injuries के chances होते हैं, and the basic line is that I train to hit my opponents and I train to defend myself from people who are trying to hit me with full power. उसमें helmets और guards और gloves allowed नहीं होते। So I learned from that after 8 years of taekwondo कि put yourself, निदा ने भी कहा था अपने आप को सिचुएशन में डालो। I'm not saying कि जाओ बाहर जाके किसी रेपिस्ट के पास चलो अपना को सिचुएशन में डालो, I'm not saying that. I'm saying कि go through that training, yeah I would say go through that simulation। तो हम लोग यहाँ पे तो we always try to do that कि train realistically, train aggressively, because this is not a physical session। मैं आपको यहाँ पे डेमोस हम लोग देते हैं, आप लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस करवाते हैं कि आपके बाल जब पकड़े आते हैं, कोई बंदा जब आपको गिरबान पकड़ के हिलाते हैं। मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड करूंगा अपने पेज पे, if you haven't seen my page, सब फ्रेंड्स कम्युनिटी फेसबुक पे, ये निदा आमना और रिसर्च आप लोग ले सकते हो पेज निदा से मिला, तो उस पर मैं भी कुछ डेमोस डालूंगा। हमने कुछ वर्कशॉप्स कराई थी, तो लड़कियों की हालत खराब हो जाती है जब उनका हमने बाल पकड़े, उनको जब हमने झटका दिया, बंदे चकराए थे। तो यू नीड टू ट्रेन अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ट्रेन हार्ड। आप इस ये चीजें करो, डू नॉट अज्यूम। मेरे पास कितनी लड़कियां, एक तो 90% की छोड़ के चली जाती हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर, दे वांट टू लर्न इन व्हाट लुक्स गुड, व्हाट लुक्स कूल, दे डोंट वांट टू लर्न व्हाट दे नीड टू लर्न, या they need to go through the hard process। Training जो होती है बड़ा hard process होता है, it is painful, you get injured, you get injuries, this is real training। So if you are training, if you want to train for this, I would say train with people who push you to the limits। आपको लिमिट से गुजारे, you need to take hits, you need, I'm not saying मुक्के दिखाओ, but at least starting में हिलो, somebody would be aggressive with you। जब आप वो चीजें एक्सपीरियंस करोगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, इट्स कॉल्ड कंडीशनिंग। नेचुरली कोई बंदा आपके मुंह पे हाथ रखता क्यों करते हो, बट वंस यू ट्रेन
आपकी कंडीशन में रहती है तो ऑटोमेटिकली आपने उनके खुली रहती है, आपको हाथ आएगा तो यू विल डिपेंड ऑन दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सॉरी कंडीशन रिएक्शन। तो ट्रेन अकॉर्डिंगली, ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। ट्रेन विद पीपल हु ट्रेन फुल कांटेक्ट का वर्ड बड़ा जरूरी है, उससे बड़ा आपसे डरने का है। Any other questions? Yeah, Silmar. गाइस हमारी क्लास नहीं चल रही है, आप लोग क्लास में सोते रहते हैं, दैट्स फाइन। वर्कशॉप है, कुछ पूछे वरना हम कंक्लूड करते हैं। सही कंक्लूड करें। सर आपका YouTube पे भी चैनल है? यार वो हार्ड एंड फास्ट चैनल नहीं है, छोटी मोटी चीजें डालते रहते हैं, उसमें ट्यूटोरियल्स और डिटेल्ड वीडियोस नहीं है, बट वी आर प्लानिंग कि हम स्टार्ट करें इधर उससे, एंड YouTube पे भी है वैसे, बट इट्स मोर प्रैक्टिकल। यस सर, वो चेक करो, बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। इट्स बेटर कि आप फेसबुक का फॉलो करो, हम ट्यूटोरियल्स फेसबुक पे ज़्यादा आजकल यूज करेंगे। यस सर, थैंक यू। लिदा हमना फिर हम कंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन नहीं किसी के? Yes, sir, sure. Thank you so much, sir, for your time. सॉरी आवाज नहीं आ रही। Thank you so much, sir, for your time. नॉट एट ऑल यार, प्लीज फिजिकल सीखें, फिजिकल वर्कशॉप करें, डू नॉट अज्यूम कि आपको फिजिकल कुछ सीखने को मिला होगा ऑनलाइन, थ्योरी समझे, फिजिकल चीजें। थैंक यू गाइस, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के साथ, ये आप उसे शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।